तुसिया का मतलब है यूनानी में जब आप प्रभु को बलिदान रूप से देते The हो। word tusia means sacrifice. तुसिया का मतलब है बलिदान रूप से देना। कहते हैं बलिदान रूप में Means देना, you become victim when you give to God. यानी आप जब प्रभु को देते हो आप बलिदान बन जाते हो। You don't feel blessed when you give to God. देखो जब आप प्रभु को देते हो तो अपने आप को तब तुम धन्य नहीं समझते हो। You are sacrificing, but you are not feeling the blessings. आप बलिदानी रूप में दे रहे हो लेकिन उसकी आशीषों का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। As if you feel that you're dying on the inside when you give. जब आप देते हो आपको ऐसे लगता है कि अंदर से मैं मर रहा हूँ। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. When we stand on the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Bible says when they gave an offering to the man of God, बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर को के दास को कोई आप अर्पण या भेंट देते हो, when they gave to Apostle Paul, the man of God, the offering, जब प्रभु के दास पौलुस को उन्होंने वो भेंट दी and to the work of God, प्रभु के काम के लिए, it touched the heart of Paul. पौलुस के दिल को वो बात ने बहुत ही छू लिया था। Hallelujah. When Epaphroditus, he came and gave the offering sacrifice. देखो जब एक व्यक्ति ने आके बलिदान रूप से वो बलिदान उसे दिया, In the response, his heart got touched. In the response to that, he said, "My God shall supply all your needs." उसकी उस क्रिया को देखकर उसका दिल इतना छू गया कि उसके प्रतिक्रिया में वो उत्तर के देता है और कहता है कि मेरा परमेश्वर तेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। My dear church, my dear family, I want to tell you, my God is going to supply all your needs. मेरी कलीसिया, मेरे परिवार के लोग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा प्रभु तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। But when लेकिन कब? some people want to receive the blessings without sacrificing, लेकिन कुछ लोग हैं आशीष तो पाना चाहते हैं लेकिन वो बलिदान रूप से नहीं करना चाहते हैं। without making any sacrifice, you cannot receive the supply of God. तो बिना कुर्बानी के आप प्रभु से कुछ भी नहीं पा सकते हैं। Hallelujah. I want to teach you there are certain levels without reaching those levels of sacrifice, you cannot receive the supply. देखो मैं अभी तुम्हें कुछ ऐसे स्तरों पर ले जाऊंगा, वो स्तर पे गुजरे बिना आप एक दे नहीं सकते हैं। If you read in Romans chapter 12 verse 1 and 2, अगर रोमियो का 12:1 और 2 आप पढ़ोगे, here Paul says, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice." That means there is need a sacrifice. रोमियो का 12:1 और 2 ऐसा कहता है कि इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहो। मेरे भाई मैं परमेश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप जीवन पवित्र तथा सुग्रही बलि के रूप में अपने परमेश्वर के प्रति अर्पित करें। What the Paul is saying here, present your bodies as living sacrifice. यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि अपने शरीर को जीवित रूपी बलिदान करो, Holy, पवित्रता से, acceptable to God, तथा परमेश्वर को ग्रहण करने which योग्य रहे, is your reasonable service. और जो तुम्हारी आत्मिक उपासना है। That means without sacrifice, you can't get anything from God. यानी कुर्बानी के बिना, बलिदान के रूप के बिना आप प्रभु से कुछ भी नहीं पा सकते Christian हैं। life is full of sacrifice. तो मसीह का जो जीवन है वो पूरे बलिदान से भरा हुआ है। Christian life is a life of sacrifice. मसीह का जो जीवन है, मसीह लोगों का जीवन पूरे बलिदान का जीवन है। Especially the times that we are in, the world is going through. खास करके जो समय से अब हम गुजर रहे हैं और पूरा विश्व गुजर रहा है। You know,
you know, when you have a sacrifice life, देखो, जब आपके अंदर एक कुर्बानी का जीवन है, family, the church doesn't need to go through the world is going through. तो परिवार आपको जो संसार के लोग जो जिस चीज से गुजर रहा है उससे आपको गुजरने की जरूरत नहीं है. Many of you left today's morning job and you come here. I'm telling you that is a living sacrifice for the living God. बहुत लोगों ने आपके काम Come on. को छोड़कर आज यहाँ पर आप आके बैठे हो, वही परमेश्वर के लिए एक जीवित कुर्बानी और बलिदान है. But be mindful. लेकिन आप ध्यान रखें, This time of sacrifice as an individual, देखो ये तो एक व्यक्तिगत रूप में आप बलिदान चढ़ा रहे हो. hallelujah, you as the head of house, तुम्हारे घर के तुम सिर होने के रूप में, you as a housewife, तुम अपने पत्नी घर की पत्नी होने के रूप में, you cannot move yourself and your family to the next level देखो आप अपने आप को भी और अपने परिवार को अगले स्तर पर नहीं ले जा सकते without paying the sacrifice. कुर्बानी किए बिना. You cannot build a business without sacrifice. तो अपने व्यवसाय को भी आप नहीं बना सकते कुर्बानी दिए बिना. It takes sacrifice to go to next levels. अगले लेवलों स्तर पर ऊंचे जाने के लिए कुछ कुर्बानी देना जरूरी है या बलिदान देना जरूरी है. It doesn't say that Jesus offered for us, तो right? ये वचन ऐसा नहीं कहता कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया. But it says Jesus was sacrificed for us. वचन Whoa. ऐसा कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ. Jesus was not offered to us. यीशु मसीह हमारे लिए, लेकिन यीशु मसीह ने बलिदान रूपी दे दिया हमें. Understand the scriptures. यीशु ने कुछ दान नहीं दिया हमें, Many लेकिन times he did not give himself. उसने अपने आप को हमें नहीं सौंपा, He sacrificed himself. लेकिन उसने अपनी कुर्बानी दी हमारे He लिए. gave sacrifice for us. उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी. That's why when you read 1 Corinthians chapter 5 verse 7, इसलिए पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 7वां वचन आप पढ़ते हैं. the Bible says, बाइबल कहता है, therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. तो यहाँ पर वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों का 5:7, पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. Hallelujah. That means Jesus is the Passover lamb sacrificed for us. यानी यीशु मसीह वो फसह का मेमना है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ. Not given us for off, he is not offered to us. उन्होंने केवल अपने आप को दे दिया ही नहीं He अपने did लिए, not soap diya, but he gave sacrifice. लेकिन उसने अपनी कुर्बानी दी, He sacrificed for us. हमारे लिए अपनी बलिदान दिया. Amen. There is giving is something, sacrifice is something. केवल दे देना, अपने आप को दे देना वो अलग बात है, लेकिन कुर्बानी रूप He से, did बलिदान not रूप से दिया वो अलग बात है. Jesus did not come to give himself. यीशु अपने आप को हमें केवल देने के लिए नहीं आया, He came to sacrifice for us. लेकिन वो यहाँ पर आया हमें कुर्बानी देने के लिए. Hallelujah. Get out of your old mindset. अपने पुराने सोच से बाहर निकले. Many Christians, they know about tithing, about giving, about offerings. बहुत मसीह लोग जो है दशमांश के बारे में, देने के विषय में सब कुछ जानते हैं. They know about givings, वो देने के विषय में बहुत जानते हैं, but they hardly know about the sacrifice. लेकिन कुर्बानी या बलिदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. It means you are giving your tithe without sacrifice. यानी आप अपने दशमांश को दे रहे, बलिदान रूप से नहीं दे रहे हो. God is going to open your eyes this morning. I'm telling you, you'll आज never be सुबह the को same प्रभु again. तुम्हारे आंखों की दृष्टि को खोलेगा, मैं बताना चाहता हूँ. This is not another church service. This is an heavenly package for your life. तो ये कोई अलग चर्च की सभा नहीं है केवल, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत ही सामर्थ्य से भरी हुई I'm fed सभा up है ये. of church services. तो मैं सभाएं चलाते चलाते थक गया हूँ अभी. Because now we want to see the heavenly service happening in the church. लेकिन हम चाहते कि स्वर्ग आकर यहाँ पे इंटरवीन करें. Come on, brother, stand up, sit down. 2 song, 3 song, 4 song. Forget about it. Let the Holy Spirit lead the house of God. हाँ भाई चलो अभी सब लोग खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, 2 गाने गाएंगे, 3 गाने गाए, फिर उठो बैठो, वो सब करने से अभी मैं थक चुका हूँ. लेकिन आइए पवित्र आत्मा को हमारी सभा को चलाने देते I हैं. arrest all the
thoughts that is coming from the world to your mind in the name of Jesus. संसार का जो सोच तुम्हारे दिमाग पर आकर आक्रमण करता है उसे मैं अभी अरेस्ट करता हूँ यीशु मसीह के Now नाम only में। you focus on the word this morning. आज सुबह को केवल प्रभु के वचन पर आप फोकस Hebrews ध्यान दें। 11:4 says, इब्रानियों का 11:4 कहता it है talks about mighty men of faith. तो एक बड़े सामर्थ्य विश्वास के पुरुषों के विषय में दिया गया है। The Hebrews 11:4, it starts with the introductions of the mighty men of faith. तो इब्रानियों का जो 11:4 है वो बहुत बड़े बड़े प्रभु के दासों के विषय में परिचय करा रहा है जो विश्वास में महान थे। And very firstly, it begins with the man called Abel. और सबसे पहला वो व्यक्ति आबील के विषय Now में listen, शुरुआत है। it does not begin with Abraham, Moses, तो ये or other अब्राहम men of faith, legendary. मूसा या दूसरे विश्वास के पुरुष है उनके विषय में ये नहीं कहा गया But पहला। it talks it Abel, the man of faith. तो लेकिन वो आबील के विषय में जो उसे कहते हैं विश्वास का पुरुष कहा गया It है। begins with a man called Abel. और ये आबील नामक व्यक्ति के साथ उसकी शुरुआत हुई है। Bible talks about amazing things about Abel. तो बाइबल आबील के विषय में कुछ अद्भुत बातें बताती He है। has an amazing quality in his spirit. देखो उसकी Whoa. आत्मा में एक अद्भुत चरित्र था, उसका स्वभाव था। We all are Abels. तो हम सब आबील है। Do we have that quality spirit like Abel? क्या वो हाबील जैसा हमारे अंदर वैसी आत्मा है? It says, by faith, say with me, by faith. Sacrifice, by faith. क्या कहता है? विश्वास ही से Abel offered unto God, mark in your Bible, excellent sacrifice. Man. Whoa. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। आपने बाइबल में उसे आप- रेखांकित कीजिए। आपको उत्तम बलिदान। Abel से सोचो क्या excellent sacrifice. देखो हाबिल ने सबसे उत्तम बलिदान चढ़ाया। Bible never say Abel offered tithe. Oh. बाइबल नहीं कहता है, पवित्र शास्त्र नहीं कहता कि आबिल ने अपना दशमांश दिया। This man's faith has recognized excellent sacrifice. देखो ये आदमी के विश्वास को प्रभु पहचानते हैं कि ये सबसे उत्तम बलिदान By उसने दिया। faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice. देखो विश्वास के द्वारा आबिल ने सबसे उत्तम बलिदान प्रभु को चढ़ाया। Then Cain, कैन के अलावा hallelujah. Then Cain, best excellent, more excellent sacrifice was given by Abel. तो यानी वो कैन से भी ज्यादा अधिक हाबिल ने सबसे उत्तम बलिदान चढ़ाया। Why? क्यों? He was righteous. क्योंकि वो धर्मी था। God testifying of his gifts. देखो प्रभु गवाही दे रहे उसके वरदानों के लिए। Though he is dead, भले वो मर गया है, yet we speak about Abel. अभी भी हम उसके विषय में बोलते हैं। Amen. Amen. By faith, Abel offered. देखो विश्वास ही से Listen. आबिल ने बलिदान चढ़ाया। There is a sacrifice, देखो एक बलिदान है and there is more excellent sacrifice. और एक बलिदान है जो उत्तम बलिदान Say है। with me, more excellent sacrifice. कहो कि सबसे उत्तम बलिदान There is giving, देने के विषय में, there is offering, फिर जो है ऑफरिंग या भेंट के there विषय is में, tithing, फिर दशमांश है, there is sacrifice, फिर बलिदान है, there is excellent फिर sacrifice, कुछ उत्तम बलिदान है, but there is more excellent लेकिन sacrifice. उससे भी उत्तम और एक बलिदान है। Hallelujah. हालेलुया। We can't build the ministry without sacrifice. देखो हमारी सेवकाई को हम बलिदान के छोड़कर हम उसे नहीं बढ़ा सकते We हैं, started from the scratch. क्योंकि हमने जो है शून्य से शुरू किया है। We never took from people from other church and we started the ministry. हमारी सेवकाई जब हमने शुरू की दूसरे लोगों की कलीसिया से लोगों को लेकर हमने शुरू I नहीं की थी कलीसिया। remember everything that started with brokenness. मुझे अभी भी याद है हमने हर चीज जब शुरुआत की थी हम टूटेपन से शुरुआत की है। Sacrifice that our family made to build a church. हमारे परिवार ने बहुत सारे बलिदान चढ़ाए कलीसिया को बनाने के We लिए। sold the house and we built the ministry. Somebody robbed and went. हमने घर को हमारे बेच कर सेवकाई में डाली थी लेकिन किसी ने उसे चुरा कर लेकर गया। Amen. Amen. And today when we got this hall, it was so heavy.
Hello, और this जब place is looking beautiful. अभी जब ये हॉल हमने लिया था तो ये हॉल ऐसा नहीं था, अभी ये सुंदर दिख रहा है। Lots of sacrifice me and my wife has done to build the church. तो इस कलीसिया को बनाने में मैं और मेरी पत्नी ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, बलिदान चढ़ाया Many है। people has been a blessing by providing to build the church. और बहुत सारे लोग आशीष का कारण हमारे लिए बने हैं इस कलीसिया में अपने अर्पण देकर। To buy the materials, it was not easy those days. We didn't have money, और zero. उन दिनों में इस चीजों को खर्चा करने के लिए इतना आसान नहीं था, इतना सारे पैसे नहीं थे। Only praying, believing, asking. केवल हमारे अंदर एक विश्वास था, विश्वास से प्रार्थना करते थे, प्रभु पे भरोसा That करते is the level. थे, प्रभु से मांगते थे। Praying, believing, asking. प्रार्थना करना, भरोसा करना, प्रभु पर मांगना उससे। Many of you today, they are still in the same level, praying, believing, asking. और आज भी बहुत लोग उसी स्तर पे अभी भी है, प्रार्थना Yes. कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं और प्रभु से पा रहे हैं। Today we are preaching the gospel and taking the gospel all over. It is only because of the sacrifice that we have made. तो आज अगर हम प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार को लेकर पूरे जगत में हम जा रहे हैं, तो ये केवल वो बलिदान के You कारण know, हो सका है। there is a sacrifice that you make will bring the supply unending for your life. वो बलिदान जो तुम करते हो वो तुम्हारे जीवन में ऐसे स्रोत को खोलेगा जिसका कोई अंत नहीं The होगा। supply that is never ending. Say somebody, amen वो to that. ऐसा स्रोत होगा जिसकी कोई रुकावट नहीं है। You sacrifice your morning and coming here, God is watching. Amen. Never ending supply will come to you. I आप- prophesy in the name of Jesus. आप बलिदान चढ़ाकर बलिदान रूप में जो है इतने जो आप यहाँ पर आते हो वो प्रभु ने देखा है और उस बलिदान को प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। That's what Abraham is teaching to, that's what God is teaching to Abraham. यही तो बात प्रभु अब्राहम को सिखा रहे हैं। God said, Abraham, sacrifice your son. प्रभु ने अब्राहम से कहा तेरे बेटे के बलि चढ़ा। The moment Isaac was put on the altar जिस क्षण ईसाक को वेदी पर चढ़ाया गया for sacrifice, बलिदान के लिए, till that God was testing his willing. तब तक प्रभु परख रहा था क्या ये इच्छुक Is he करता है, willing to make the sacrifice? क्या ये कुर्बानी या बलिदान करने के लिए तैयार है। Until that, the last moment, God did not provide the provision because he was testing his sacrifice. देखो अंतिम क्षण तक प्रभु ने उसे उसका प्रबंध नहीं किया था या उसके जरिए को पूरा नहीं किया था, क्योंकि प्रभु अंत तक उसके विश्वास योग्यता को परख रहा था। Well, Abraham, you put your son on the altar. इब्राहिम तेरे बेटे को तो बलि दे दे। I am looking into the heart sound. अभी तेरे दिल के अंदर के धड़कन को मैं देख रहा ये हूँ। क्या कर रहा है प्रभु? प्रभु तू क्या कर रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ. बचाओ बचाओ बचाओ। No, until the last beat of Abraham's heart, God was not providing any provision. देखो अब्राहम के अंतिम दिल के धड़कन तक प्रभु ने उसके जरूरत को पूरा नहीं किया, Because he was seeing his sacrifice. क्योंकि प्रभु की नजर उसकी बलिदान The पर थी। moment his sacrifice was accepted to God, और जिस क्षण प्रभु ने उसके बलिदान को स्वीकारा, you know, God decided to move. और प्रभु ने निर्णय लिया अब मैं आगे बढ़ूंगा। Abraham, I have given the provision. Don't kill your अब्राहम son. मैंने पहले से ही वो प्रबंध कर दिया है, बंदोबस्त कर दिया है, तेरे बेटे को बलि That means चढ़ाने की जरूरत नहीं Your है। sacrifice will tap into the supply that is unending. यानी तुम्हारा बलिदान उस सोत्र में जो है टैप करेगा जिसका सोत्र कोई अंत नहीं है। God Almighty will open to see you the provision. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे आंखों को खोलेगा उस प्रबंध को देखने के God लिए। Almighty opened the Abraham's eye to see the provision ahead. प्रभु ने अब्राहम की आंखें खोले वो देखने के लिए कि वो प्रभु ने पहले से वो सोत्र को तैयार Listen, किया है। the moment you decide towards the sacrifice, देखो जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं कि आप बलि के लिए तैयार है, you know, God supplies. प्रभु पहले से उसका प्रबंध कर देता है। How many of you want to be successful? तुम में से कितने लोग हैं जो प्रतिफल या सक्सेस होना चाहते हैं? No sacrifice, no success. अगर आप कोई बलिदान नहीं देना चाहोगे तो आपको वो सक्सेस नहीं मिल सकता है। If you are a businessman, you need to be a sacrificial man.
अगर आप एक व्यवसाय करते हो तो आप भी बलिदान रूपी देने वाले व्यक्ति बनना है If you आपको। want to move your family to the next level, you should be a man of the house to sacrifice with your family, morning, getting up, praying, and coming to the house of God. अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार जो है और अलग लेवल पर जाए तो आप एक ऐसे पुरुष बनना है जो घर का सिर है। आपके परिवार के साथ आपको सुबह जल्दी उठना है, प्रार्थना में जुड़ना है और आपने प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। और वो आपके सुबह के जो प्रार्थना आपको बलिदान देना है। If you want to move your family to a blessing, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को आप आशीषों के सोत्र if में you ले want जाना your चाहते हैं, family to go to the next level, आप चाहते हैं कि आपका परिवार अगले लेवल पर आगे बढ़े, be a sacrificial man. आप एक बलिदान रूपी व्यक्ति If you are बने। not a sacrificial person, you cannot see the supply that is ahead of you. अगर आप बलिदान रूपी व्यक्ति नहीं है तो आपके आगे जो प्रभु ने पहले से ही प्रबंध कर दिया है वो सारे आशीषों को आप कैसे दे सकते What हो? shall I sacrifice? क्या कुर्बानी दूं, क्या बलिदान चढ़ाऊं? Whatever sacrifice means, you sacrifice it. जो भी चीज आपको लगता है इसके मुझे बलिदान देना है, कुर्बानी करनी है, आप उसे कुर्बानी दे On दो। behalf of your family, आपके परिवार की ओर से आप करो, on behalf of the church, for आपके कलीसिया की ओर से आप the करें, children's future. आपके बच्चों के भविष्य के लिए करें। Whatever you means the sacrifice, do it. जो भी आपको लगता है कि इसे मुझे मेरे लिए कुर्बानी देनी है, आप उसे करें। Hallelujah. There are levels. अलग अलग स्तर है। If you tap into those levels, अगर आप उस लेवल के को जो है छू लेते हो, you see the supply ahead. आप जागे देखोगे कि सब कुछ प्रबंध हो गया है, मिल चुका है।